Hello everyone, today I am here with my another new YouTube video, and this video is about the admission process of Ramakrishna Mission. Many people have asked me that from which college you are completing your graduation and that institution offer which type of courses. After class 12, many person get confused. Almost everyone that what to do now, what courses to opt and what to do in the future, what scope this institution or this course will offer me. Okay, and as there are three streams, arts, commerce and science, so people even don't know that it is a science institute or it is a commerce institute or it is a arts institute. Okay, so you should know that if you have taken science or you have taken commerce or arts, you should know that what to do further and which institution will be good for you. So as many people have asked me about my institution and about my college, that what and my subject, that what course I am studying. So for clearing all that type of confusion about my college, about my institution, about the courses I am studying, so that's why I have brought this video. There are many people who have asked me, so I have not replied them individually. For them I am making this video, and for many people who are not knowing about the Ramakrishna Mission Vivekanand Educational and Research Institute. It is a very good autonomous deemed university and it is mainly for the agriculture and rural development. Okay, no other course are offered there. So that's why, for clearing that confusion, I have brought this video about the admission process, about the courses offered, about the eligibility criteria. Everything will be in this video. So have patience and watch the full video. You can also visit the real site of the Archamveri so that you can get all information there. But I am making this video so that I can make it clear about that information that is given in the site. Okay. So do watch the full video, and if you will like this video, then please like, share and subscribe my channel and help me to grow. As it is a very important video, so without any further delay, let's start our today's topic. Admission process of the Ramakrishna Mission Vivekanand Educational and Research Institute. Okay, and in which institution I am studying. So let's start. So here first it is the admission procedure. So I will speak in both Hindi and English so that it will be easy for you to understand. As I have made the PPT in English, so I will try to explain it in Hindi, so it will be easy for you. Okay. So in the very first point it is written that जो एप्लीकेशन होगा उसको आप ऑनलाइन मोड में सबमिट कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन मोड में नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन मोड में भी सबमिट कर सकते हैं. तो ऑफलाइन मोड में क्या है कि आपको उस एप्लीकेशन को कलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द ऑफिस, और यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट. ओके, और उस फॉर्म को भरने के बाद क्या होगा कि पहले रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, और रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग या इंटरव्यू होगा. और वो जो रिटन टेस्ट होते हैं वो 100 मार्क्स के लिए होते हैं, एंड इट विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कोर्सेज. वो सारे कोर्सेज के लिए कंडक्ट किए जाते हैं, और उसको पास करने के बाद ही कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड फॉर काउंसलिंग और इंटरव्यू. ओके, तो ये एडमिशन का कुछ प्रोसीड्यूर था. अब हम देख लेते हैं द कोर्सेज ऑफर्ड. ओके, विच टाइप ऑफ कोर्सेज इज ऑफर्ड इन दिस यूनिवर्सिटी. सो 5-year integrated MSc in agriculture, rural and tribal development, ARTD. ARTD is a course which is offered in this institution. It is a 5-year integrated MSc in agriculture, rural and tribal development. इस कोर्स में क्या होता है कि BSc प्लस MSc साथ में कंप्लीट हो जाएगा, और ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है. एज के नाम से ही पता चल रहा है, एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट. तो ये 5-year इंटीग्रेटेड MSc इसलिए इसे बोला जा रहा है क्योंकि BSc प्लस MSc ये कंप्लीट करवाता है ये कोर्स इन एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, ARTD. ओके, एंड दिस इज़ द कोर्स व्हाट आई एम डूइंग. तो जो बहुत कोई पूछ रहे थे कि आप कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो दिस इज़ द कोर्स 5-year इंटीग्रेटेड MSc इन एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट. दिस कोर्स आई एम परसुइंग फ्रॉम रामकृष्ण मिशन. ओके, और सबको पता ही होगा, वरना बता देते हैं, ये रांची मोराबादी में है. द सेकेंड इज 2-year MSc इन एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट. तो यहाँ 2-year MSc भी होता है इन एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट. अगर BSc
आप कर चुके हैं कहीं और से, तो एमएससी के लिए भी आप यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। दैट इज़ अ 2 ईयर कोर्स, एमएससी इन एग्रीकल्चर रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, ARTD। पर आप ग्रेजुएशन किस कोर्स में किए हैं वो मैटर करता है। वी विल टॉक फर्दर कि उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, पहले बस कोर्स का बात कर रहे हैं, फिर उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी बात करेंगे। थर्ड इज मास्टर ऑफ आर्ट साइंस इन रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। तो मास्टर इन आर्ट या MSc इन RDM इसे बोला जाता है कि मास्टर ऑफ आर्ट साइंस इन रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। ओके, ये कोर्स RDM का कोर्स भी यहाँ पे कराया जाता है। द फोर्थ इज बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स मीन्स BSc इन एग्रीकल्चर। बट ये डायरेक्टली कॉलेज के टेस्ट या कॉलेज की इंटरव्यू से इस BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं होता है। जैसा कि सबको पता है कि एग्रीकल्चर के लिए एक एग्ज़ाम दिया जाता है JCECE, तो झारखंड कॉम्बाइंड इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वो एग्जामिनेशन को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग में कॉलेजेस मिलते हैं, और उसमें से रामकृष्ण मिशन भी एक कॉलेज हो जो मिलता है। सो दिस इज़ डिफरेंट, एंड ये कॉलेज के पर्सनल कोई भी टेस्ट या कोई भी इंटरव्यू से नहीं होता है। इसके लिए BSc इन एग्रीकल्चर के लिए हमें JCECE एग्ज़ाम देना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एडमिशन होता है। सो द नेक्स्ट इज़ 3 ईयर बैचलर्स ऑफ वोकेशनल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, BVSA। सो इट इज़ अ वेरी न्यू कोर्स और बहुत अच्छा कोर्स है। 3 ईयर बैचलर ऑफ वोकेशनल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये 3 साल का कोर्स होगा, BVSA। ओके, द नेक्स्ट इज 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट प्रैक्टिस। तो यहाँ डिप्लोमा भी होता है। जैसे बहुत लोग हैं कि जो 3 साल 4 साल नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक डिप्लोमा कोर्स भी होता है जिसमें भी प्लेसमेंट दिया जाता है, और ये बहुत अच्छा कोर्स है 1 ईयर का। अगर आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट प्रैक्टिस, PGDRDP। ओके, द नेक्स्ट इज 1 ईयर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ARD में भी 1 ईयर डिप्लोमा होता है। ARD का फुल फॉर्म एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देन 1 ईयर डिप्लोमा इन ICT इन एग्रीकल्चर, ये सब न्यू कोर्सेज ओपन हुए हैं इस यूनिवर्सिटी में। 1 ईयर डिप्लोमा इन ICT। ओके, ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट इज 1 ईयर डिप्लोमा इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, DOF। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस कोर्स। 1 ईयर डिप्लोमा इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये 1 ईयर डिप्लोमा कराता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। देन ये तो डिप्लोमा कोर्सेज का बात हो गया, पर यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होता है। ओके, 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एग्रीकल्चर, जो 1 साल भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, बस 6 महीने में कुछ सीखना चाहते हैं, ट्रेनिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं अपना, उसके लिए ये बहुत अच्छा कोर्स है, 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एग्रीकल्चर। ओके, एंड यहाँ से इस कॉलेज से PhD भी किया जा सकता है, PhD इन एग्रीकल्चर रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट। ओके, ARTD। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द कोर्सेज, पर उस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? क्या सब कोई एलिजिबल है? नहीं। तो कौन कौन एलिजिबल है उस चीज़ को अब हम देखते हैं। ओके, सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट इज, जैसे कि हम लोग पहले बात किए थे, फॉर 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड MSc इन ARTD कोर्स, जो कि हम कर रहे हैं, बताए थे कि आई एम परस्यूइंग दिस कोर्स। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जो आप इस कोर्स में एडमिशन करा सकते हैं? 10+2 in science stream or vocational agriculture horticulture from a recognized institution board with at least 50% marks in both secondary 10th and 10+2 standard examination। तो 10th और 12th में आपका जो परसेंट है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए, एंड आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करना चाहिए, या तो वोकेशनल एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का जो कोर्स होता है आप वो करके आने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, तभी आपका एडमिशन हो सकता है ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc इन ARTD में। ओके, 10 एंड 12th में 50% से ज़्यादा मार्क्स, और 10th और मीन्स 12th जो होगा वो साइंस स्ट्रीम से होगा, या तो वोकेशनल एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कोई किए हैं उससे भी इसमें एडमिशन होता है। द नेक्स्ट इज़ फॉर 2 ईयर MSc इन ARTD कोर्स। ओके, सो जो एक 5 ईयर्स का MSc इन ARTD होता है कि ये 2 ईयर्स वाले होता है। तो जो 2 ईयर्स वाला होता है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? दैट यू शुड बी ग्रेजुएट इन BSc इन एग्रीकल्चर। ओके,
हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर आप ग्रेजुएशन ARTD में किए हुए हैं या तो प्योर BSc इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री में किए हुए हैं, then only you are eligible for this 2-year MSc in ARTD course. Okay, the third is for the Master of Arts Science in Rural Development and Management, जो RDM का बात किए थे, you are eligible for this RDM if you are graduated in any discipline, arts, science, commerce, engineering etc. with 50% mark as aggregate। तो इसके लिए ओनली साइंस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी नहीं है। अगर ये RDM रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट जो कोर्स है, इसके लिए आप किसी से भी कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस से बिलोंग करते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स RDM। ओके, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स साइंस इन रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। बट आपका क्या है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल। उससे कम होगा देन यू आर नॉट एलिजिबल। द नेक्स्ट इज़ फॉर बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, मीन्स BSc इन एग्रीकल्चर। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं दैट BSc इन एग्रीकल्चर ये कॉलेज इंस्टीट्यूशन अपने से कोई एग्ज़ाम इसके लिए नहीं कराता है, जो JCEC एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू ही यहाँ पे इंस्टीट्यूशन मिलता है। ओके, द नेक्स्ट इज़ बैचलर ऑफ वोकेशनल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये जो बैचलर ऑफ वोकेशनल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो कोर्स है, उसमें 12th में आपका 45% मार्क्स से अबव होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल। ओके, जो नेक्स्ट है 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। तो इसके लिए क्या होता है कि यू शुड बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी से भी, इंजीनियरिंग भी हो सकता है, बट यू शुड बी पास विथ 50% मार्क्स। ओके, अगर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। फॉर 1 ईयर डिप्लोमा इन ARD, ओके, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ये जो 1 ईयर डिप्लोमा का बात किए थे, तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट 12th कोई भी डिसिप्लिन में, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उससे आपको वो 12th अगर आप उससे कोई भी स्ट्रीम से किए हो, बट 45% मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। ओके, देन फॉर 1 ईयर डिप्लोमा इन ICT इन एग्रीकल्चर, तो इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि जो 10+2 है मीन्स 12th है, वो 45% मार्क्स से आप कोई भी सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, कोई भी स्ट्रीम में। द नेक्स्ट इज़ 1 ईयर डिप्लोमा इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो डिप्लोमा के लिए सारे डिसिप्लिन में आप मीन्स एलिजिबल है, ये नहीं कि साइंस बैकग्राउंड ही बस एलिजिबल है, साइंस भी हो सकता है, आर्ट्स भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 45% मार्क्स से आप पास होने चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस डिप्लोमा कोर्सेज। द नेक्स्ट इज़ 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एग्रीकल्चर। जो 6 मंथ का एग्रीकल्चर कोर्स है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि वही 12th में 45% मार्क्स से आपको पास करना होगा, एंड आप कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करें वो मैटर नहीं करता है। सो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एनी डिसिप्लिन, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, उससे आप बिलोंग करेंगे तो बस आपको 45% मार्क्स से ज़्यादा से पास होना है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड ऑल्सो फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट कोर्स। ओके, अब सबसे बड़ा बात एडमिशन टाइम टेबल, कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये कब होता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, सो इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड प्रोस्पेक्टस February to June 2nd वीक। ओके, तो जो फॉर्म निकलता है वो February to June 2nd वीक तक का रहता है एवरी ईयर। सो अभी तो सिचुएशन सबको पता है दैट अभी कोरोना पीरियड है, तो पिछले साल का जो एडमिशन हुआ है वो मार्क्स के हिसाब से हुआ है, कोई भी इंटरव्यू या काउंसलिंग या रिटन टेस्ट नहीं हुआ है उसके लिए, बिकॉज सिचुएशन ऐसा था कि दैट ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं हो सकते थे, ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं हो सकती थी, दैट्स वाई मार्क्स के ऊपर, मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट को लिया गया था। सो दिस टाइम द सिचुएशन इज़ इवन मोर वर्स्ट। तो अब पता नहीं कि इस साल भी ऑफलाइन टेस्ट होगा, काउंसलिंग होगा या इंटरव्यू होगा कि नहीं, ये अभी तक पता नहीं है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बट जो नॉर्मल हर साल जो होता है, जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तो हर साल क्या क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया को मैं बता रही हूँ कि हर साल जो नॉर्मल सिचुएशन में जब कोरोना नहीं था तो क्या क्राइटेरिया होता है और आगे भी होगा। होप सो कि इस साल भी ऐसा ही हो। सो ये क्या है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा वो फरवरी में निकल जाता है और June 2nd वीक तक रहता है एवरी ईयर। ओके, सो द सेकेंड इज़, अगर फॉर्म भरने के बाद जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट वो 3rd वीक ऑफ जून में होता है एवरी ईयर। ओके, और जब
ये रिटन टेस्ट हो जाता है, जब इंटरव्यू या वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन हो जाता है तो ये लास्ट मंथ ऑफ जून में होता है। और अगर सब में क्वालिफाई करने के बाद जो एडमिशन होता है और क्लासेस स्टार्ट होती है वो विद इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो जाते हैं। मेरी खुद की जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो 10th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हुई थी, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अगर सारे कुछ क्वालिफाई करने के बाद आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। अब एग्ज़ामिनेशन का बात हो गया कि एग्ज़ामिनेशन होता है, काउंसलिंग होता है, ओके, कब होता है, किस मंथ में होता है, सब बात हो गया। बट मेन बात है कि उस रिटन एग्ज़ाम में आएगा क्या, what we have to prepare for the written examination and for the viva, okay? तो यहाँ हर कोर्स के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो here the subjects are given for the written test, okay? कि आपको क्या पढ़ के आना पड़ता है written test देने के लिए, so that you can qualify that test, okay? So for integrated MSc, जो MSc in ARTD था 5 years का कोर्स, उसके लिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल साइंस से आते हैं। जनरल साइंस इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल साइंसेस। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का एक सेक्शन होता है एंड इंग्लिश का, ओके, अप टू 12th। जो 12th लेवल तक हमने जो पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, ये एक सेक्शन आता है जनरल साइंस का, एक जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का, और एक इंग्लिश का सेक्शन आता है अप टू 12th, ओके। हमने 12th तक जो पढ़ा है उस हिसाब से क्वेश्चन आता है। द नेक्स्ट इज़ फॉर MSc इन ARTD। ये बस जो 2 year MSc इन ARTD था उसके लिए पढ़ना पड़ता है जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड टेस्ट, एसे राइटिंग इन इंग्लिश ऑन जनरल टॉपिक्स, ओके। ये सब प्रिपेयर करने पे ही एडमिशन हो सकता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे ये सब सब्जेक्ट्स है जो आपको प्रिपेयर करना है। फॉर MA इन RDM द सब्जेक्ट दैट यू शुड स्टडी टू क्वालिफाई दिस रिटन टेस्ट इज़ जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड रूरल इश्यूज़। रूरल इश्यूज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सब मोस्ट कॉमन चीज़ है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करने जाए तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग तो होती है, साथ ही साथ कुछ एडिशनल चीज़ है जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर कोर्सेज, ओके। सो फॉर BSc इन एग्रीकल्चर, इसके लिए आप JCEC का साइट जा सकते हैं, बिकॉज कॉलेज इसका डायरेक्ट कोई एग्ज़ाम नहीं कराता है। JCEC के अकॉर्डिंग ही BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन वो लोग को मिलता है, ओके। फॉर बी वोकेशनल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो इसके लिए क्या पढ़ना पड़ता है, एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट्स से रिटन टेस्ट में आता है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स अप टू 12th, ओके, 10+2 लेवल। और जितने भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज का बात किया है हमने, तो उसका रिटन टेस्ट में जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आता है। और जनरल साइंस में क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर साइंसेज से आता है। ये सब जनरल साइंस में आते हैं, ओके। सो डिप्लोमा सर्टिफिकेट सारे कोर्सेज के लिए जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स ही बस पढ़ के आना पड़ता है। एंड इफ़ यू विल प्रिपेयर ऑल दिस तो ईजी होता है रिटन टेस्ट, हार्ड नहीं होता है। अप टू 12th लेवल का होता है तो बहुत ईजी होता है, बस थोड़ा सा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, then you can qualify this, okay. So these are the subject that you should study for your written test for different courses, okay. So this all for today. I hope I cleared your all doubts. I have tried to explain you the admission procedure of Arkemveri Ramakrishna Mission Vivekanand Educational and Research Institute, the college in which I am studying. If you want to know something more about Arkemveri Ramakrishna Mission, that is in Ranchi Morabadi, you can comment below. And if you have any queries or any doubt related to this video, then also you can comment below, or you can message me in my Instagram, okay. I will provide you the link in my description box. And for the PDF you can join my Telegram account, okay. I will also provide the link in the description box of my Telegram account. I think it is a very best institute for the agriculture student and for the rural development student, as I have explained you about all the courses. So you can see that how unique courses are being taught in this university, okay. So these are the unique courses that are only taught in this Ramakrishna Mission University, okay. So if you like this video or this video helped you a little also, then please like, share and subscribe my channel and help me to grow.
It will take only few seconds, so please like, share and subscribe it. I try to make some useful contents so that it can help the people like me, the student who are studying. Okay, so you can check my contents and be connected to this channel for many more. Okay, so we will meet in my next video. Till then, bye bye, take care.